Hi friends, how are you all? This is Atifa and welcome back to my channel, your favorite channel, Knowledge is Power. What we are going to understand in this chapter is we are going to understand class 7 geography chapter number 1, which is environment. In this, we are going to understand what is environment and the types of environment. So let's get started this chapter. It is written that the World Environment Day is celebrated on 5 June every year. It means that the World Environment Day, in this we are expressing the inspirations about the environment. We are speaking about the environment, what is environment, how we conserve the environment. We have to not pollute the environment. In this day we are going to conserve, tells about the environment. Okay, and when it is celebrated on 5 June every year. Clear all of you? Now the second thing is French word environner or environner means neighborhood. So what is means that the word environment is come from French word known as environner. And what is the meaning of environment? Environment means neighborhood. It means what is environment? It means the that surrounds you. This just like if I take the examples, this is Spain. So what is this is Spain and this is my environment. Okay? तो जो आपके आस पास है वो आपका environment होता है. So let's understand the definitions of environment. That is the nature, place, people and things that surround the living beings is called environment. Means the nature and the place, the people, the thing is surround you. So what is they called? Nature is called your environment, place is called your environment, people is called your environment, things is called environment. So this is environment. Clear all of you? Now let's move to the next. That is, environment is a combination natural like mountains and rivers, human made things like roads and cars. So what does it tells that the environment comprises three things. What is first? The first is natural environment. The second is human environment. The third is human made environment. So what is natural environment? What it comprises? So natural environment comprises mountains and rivers, and human made comprises roads, cars. They comprises. Okay, so what does the human comprises? We are going to understand this on the दिस पार्ट्स डी में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, सो environment is our basic life support system. So environment is a system and it is a life support system, basic life support system. Not only life support system, it is a basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. So what does the environment provide? The environment provides us the air that we breathe, the land, the water, the land where we live, the water that we drink, the food that we eat. So it all is given by the environment. Next part, natural environment relates to biotic and abiotic conditions. It means if I talk about the natural environment, here it is written that the natural environment is comprises two things, biotic and abiotic. My writing is not so good. Yes, so what is biotic? The world of living organism is known as biotic. Means कि biotic किसे कहते हैं? Living things को and abiotic is said to be non-living things. Clear all of you? These things are clear? I hope so. Let's move to the
What is human environment? Means what the human environment comprises. The human environment refers to the activities that the humans do, the creations that the humans do, the interaction among the human. means मेरी और किसी और से इंटरेक्शन हो रही है तो वो क्या हो रही है, एक ह्यूमन इन्वायरमेंट होती है. ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू, दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू? Yes, now moves to the natural environment. Understand it is on detail. So everything around us that is natural and not made by humans is part of the natural environment. What does it say is that the जो चीज़ everything जो कि nature से we are obtained from nature not by humans is a part of natural environment. So what does the natural environment comprises? The natural environment comprises land, water, air, plants and animals. Okay, let's understand what is lithosphere. Lithosphere we are obtained from means if I talk about land, lithosphere means land. We have where we obtain land. We obtain land from the nature. So we have to learn what is land, what is lithosphere. लिथोस मीन्स रॉकी. लिथोस्फीयर मीन्स रॉकी. रॉकी क्या होता है? रॉकी होता है हमारा लैंड. तो एक हो गया लिथोस और एक हो गया स्फीयर. स्फीयर क्या है? हमारा अर्थ. तो स्फीयर का तो हमें बताया नहीं है, बस लिथोस्फीयर का, लिथोस का बताया. अब हम लोग इसके पॉइंट्स देख लेते हैं. दैट इज रिटन. फर्स्ट पॉइंट इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मैंटल. क्या कह रहे हैं कि ये लिथोस्फीयर, व्हाट इज द लिथोस्फीयर? इट इज़ अ सॉलिड पार्ट, अर्थ का आउटर पार्ट. और ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? ये क्रस्ट और अपर मेंटल. ओके, ये क्या कंसिस्ट करता है? क्रस्ट और अपर मेंटल को कंसिस्ट करता है. क्लियर ऑल ऑफ यू? वेट अ मिनट. यस. And it is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. So lithosphere, it is made up of rocks and minerals. Lithosphere is made up of rocks and the minerals and it is covered by a thin layer of soil. Thin, पतली, एक बोलते एक चादर, एक मिट्टी की एक पतली सी चादर कंसिस्ट लिथोस्फीयर करता है. ये रॉक से बना होता है, मिनरल से बना होता है और ये कवर होता है थिन लेयर ऑफ सॉइल से. नाउ the third point is it is an irregular surface containing landforms like mountains, plateaus, plains and valleys. मीन्स कि लिथोस्फीयर ऐसा नहीं है कि आपका हर जगह प्लेन ही प्लेन है, हर जगह माउंटेन ही माउंटेन है, हर जगह प्लेट्यू ही प्लेट्यू, ऐसा नहीं है. ये इरेगुलर शेप का है. मीन्स इरेगुलर सरफेस का कहीं पे होगा हमारा माउंटेन होगा, कहीं पे प्लेट्यू होगा, कहीं पे प्लेन्स होगा और कहीं पे वैलीज होंगे. Clear all of you? Now hydrosphere. Hydrosphere means hydra means water. So what is it? It is the part of the earth that contains the water. What a hydrosphere is? It is a part, अर्थ का एक हिस्सा है जो क्या कंटेन करता है? वाटर को कंटेन करता है. इंक्लूड्स वाटर बॉडीज. ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ये वाटर बॉडीज को इंक्लूड करता है. वाटर बॉडीज का एग्जाम्पल क्या हो गया? स्ट्रीम्स, लेक्स, ओशियंस, सीज, रिवर्स एक्सेट्रा. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये आपको पता ही होगा, हाइड्रोस्फीयर वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स. ये सभी के लिए एसेंशियल है ना, इससे हम लोग को वाटर ऑब्टेन होता है. क्लियर ऑल ऑफ यू? अब हम लोग तीसरा देखते हैं जो कि है एटमॉस्फेयर. एटमॉस मीन्स वेपर. मीन्स हमारा एटमॉस्फेयर एक वेपर से बना है, एक भाप से बना है. समझ लो, ऐसे ही कुछ समझ लो. अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक लेयर का एक थिन लेयर होता है. ये क्या होता है? एक लेयर होता है एयर का जो कि बहुत थिन होता है. कि क्या सराउंड करता है? ये अर्थ को सराउंड करता है. कंटेन्स अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वेपर. वाटर वेपर ये क्या कंटेन करता है? नंबर ऑफ न्यूमरस गैस कंटेन करता है, न्यूमरस डस्ट कंटेन करता है, न्यूमरस वाटर वेपर कंटेन्स करता है. अब देखिए क्या लिखा है.
shields us from the harmful rays and fiery heat of the sun. मीन्स देखिए, सन से हार्मफुल रे भी निकलता है और गुड रे भी निकलता है. हार्मफुल रे हमारे लिए हार्म है. हार्मफुल रे में जैसे कि यूवी रे. यूवी रे का फुल फॉर्म अल्ट्रा वायलेट रे. अल्ट्रा वायलेट रे से हमें एटमॉस्फेयर बचाता है. देयर इज अ चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट इफ देयर इज अ चेंज इन द एटमॉस्फेयर. कब वेदर और क्लाइमेट में कब चेंजेस आते हैं? जब आते हैं जब एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस आते हैं. Clear all of you? Now let's move to the another things, that is biosphere. Biosphere बहुत अच्छे से समझना, ध्यान लगा के समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. बायो मीन्स लाइफ ही होता है. ये हमारे जीने के लिए एक जीने के लिए ये बात है, तो इसे हमको ज़रूर से समझना ही होगा. ठीक है. बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है? बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है? इट इज़ द लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट. बायोस्फीयर क्या है? ये लिविंग कॉम्पोनेंट है. बायोस्फीयर क्या है? इन्वायरमेंट का लिविंग कॉम्पोनेंट है. अब देखिए, अब क्या है, ये कैसे फॉर्म होता है? जिस जगह पे लिथोस्फीयर भी अवेलेबल है, जिस जगह पे हाइड्रोस्फीयर भी अवेलेबल है, जिस जगह पे एटमॉस्फेयर भी अवेलेबल है, जब ये तीनों चीज़ एक जगह पे रहेगी तो हम उसे कहते हैं बायोस्फीयर. जिस जगह पे लिथोस्फीयर, जिस जगह पे हाइड्रोस्फीयर, जिस जगह पे एटमॉस्फेयर रहती है, उसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या इंक्लूड्स करते हैं? बायोस्फीयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करते हैं, प्लांट्स इंक्लूड्स करते हैं, ह्यूमंस इंक्लूड्स करते हैं, बर्ड्स इंक्लूड करते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूड्स करते हैं. अब बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या होती है. मैं यहाँ पे इसे रेड से इंडिकेट करूँगी. इट्स इम्पॉर्टेंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एक लिविंग थिंग्स ही होता है. द ऑर्गेनिज्म दैट वी आर नॉट एबल टू सीन विद द नेकेड आइज, इट इज़ ओनली सीन बाय द विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. मीन्स कि जम्स क्या है? ये एक वायरस समझ लो. वायरस क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर जम्स भी समझ सकते हो. जम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. मेरे हाथों में मान लो जम्स है. अब मेरे हाथों में जम्स है तो क्या आप देख पा रहे हो कि मेरे हाथों में जम्स है? नहीं, मैं भी नहीं देख पा रही हूँ कि मेरे हाथों में जम्स है भी कि नहीं. देख रहे हो? नहीं देख पा रहे ना. तो मैं सिर्फ इसमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकती हूँ. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की मदद से ही मैं देख सकती हूँ. ठीक है. तो मैं माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकती हूँ, है ना. तो इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी करती है कि हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स का है, किसको हम इंक्लूड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उस स्टडी को जो स्टडी करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप यू आर गोइंग टू क्लियर दिस. ठीक है. इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. अब माइक्रोबायोलॉजी के फादर क्या है? मतलब कि फादर कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी के फादर एंटन वैन लेवेनहक है. मैं यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिख देती हूँ. एंटन वैन, यहाँ पे लेवेनहक. एंटन वैन लेवेनहक. तो ये क्या है? ये हमारे फादर हैं माइक्रोबायोलॉजी के. माइक्रोबायोलॉजी समझ गए ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी करता है. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम. देखो देखो देखो, पहले एक बात मैं बता दी. देखो कितना बड़ा है, और भी ऊपर बड़ा होगा. देखो कितना बड़ा है, तो इसको अच्छे से समझना होगा ना. अब इकोसिस्टम क्या होता है पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से. इतने सारे मैंने एग्जाम्पल्स भी लिए हैं इकोसिस्टम के. All living things depend on their surroundings and also on each other. मीन्स कि सभी ऑर्गेनिज्म, मैं किसी दूसरे लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड हो सकती हूँ. सभी, कोई, हर लिविंग थिंग्स, हर, जैसे मान लो ये है एक और हमारा इंसान. ये लिविंग थिंग्स दूसरे इंसान पे भी निर्भर हो सकता है. मान लो इसके पास है अपना ये दुकान है,
इसके पास दुकान है, तो ये किस पे, ये इंसान किस पे निर्भर होगा, ये इस पे निर्भर होगा और ये भी इस पे निर्भर होगा कि दुकान तो है मेरे पास, कस्टमर भी आना चाहिए, तो कस्टमर कौन होगा, इंसान होगा, है ना, ऑब्वियसली। तो ये इस पे डिपेंड है और ये इस पे डिपेंड है, तो ये क्या हो रहा है, सभी लिविंग थिंग्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब an ecosystem is the network of relationship between the biotic like plants and animals and an abiotic components in a given area। मतलब कोई एक एरिया है और इस एरिया में बायोटिक और एबायोटिक और बायोटिक इंटर कॉम्बिनेशन है, मीन्स कि वो एक दूसरे पे निर्भर है। इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक नेटवर्क है, ये एक रिलेशनशिप का नेटवर्क है। किस चीज़ का नेटवर्क है, रिलेशनशिप्स का। बायोटिक और एबायोटिक के बीच में रिलेशनशिप को ही हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। कोई भी एक एरिया, जैसे मान लो इस एरिया में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया कोई इस एरिया में बायोटिक और एबायोटिक का कॉम्बिनेशंस को ही हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। क्लियर ऑल ऑफ यू, आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, आगे मूव करते हैं बायोटिक। हाँ, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। अनऑर्गेनिक अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमोसफियर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे का। All the components in an ecosystem are linked together through a nutrient cycles and transfer to energy and material। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ दूसरे चीज़ का, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मैं बनाई एक सॉरी मैं यहाँ पे प्लांट ही लिख देती हूँ, मुझे फिगर नहीं बनाना, मैं यहाँ पे प्लांट लिख देती हूँ। अब प्लांट को कौन कंज्यूम कर रहा है, मैं इसे पी से लिख दे रही हूँ, ठीक है, पी। प्लांट को कौन कंज्यूम कर रहा है, डियर कंज्यूम कर रहा है। अब डियर को कौन कंज्यूम कर रहा है, लायन कंज्यूम कर रहा है। तो ये एक दूसरे पे लिंक हुए ना, प्लांट लिविंग थिंग्स है और ये इस पे डिपेंड हुए, ये इस पे डिपेंड हुए, ये एक लिंक हुए ना, एक दूसरे से लिंक है ना, है ना, लिंक हो रहे हैं ना। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, एक दूसरे से लिंक है ना, ये एक दूसरे पे डिपेंड है। डियर क्या है, प्लांट्स पे डिपेंड है और लायन किस पे डिपेंड है, डियर पे डिपेंड है। तो ये क्या हो रहा है, एक लिंक बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। आई होप सो यू आर गोइंग टू क्लियर दिस। एक और एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल से मैं सोच रही हूँ, आई होप दैट यू आर क्लियर फ्रॉम दैट। अब इससे क्लियर हो जाओगे, मैं ये एग्जांपल लूँगी तब। एग्जाम्पल ऑफ एन ओशियन इकोसिस्टम, मैं अब लूँगी ओशियन इकोसिस्टम की एग्जाम्पल। द होल ओशियन is an one giant ecosystem and maybe several different small ecosystem within it। मीन्स कह रहा है कि हमारा जो ओशियन है वो बहुत जाइंट इकोसिस्टम है। ओशियन में भी इकोसिस्टम होगा, इसका एग्जांपल मैं अभी ले रही हूँ। ओशियन में भी बहुत सा इकोसिस्टम होगा। ओशियन क्या है, एक जाइंट इकोसिस्टम कंसिस्ट करता है, तो उसमें बहुत सारे सेवरल इकोसिस्टम, स्मॉल इकोसिस्टम होंगे, ठीक है, सेवरल स्मॉल इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होंगे। वेरियस ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन द इकोसिस्टम, प्लांट्स लाइक सीवीड्स एंड algae, invertebrates like jellyfish and shrimps, fish such as sharks and mammals such as whole whales can be found in it. Many sheep, birds who feed on the fish and other organisms that live in the oceans also form a part of this system. If humans fish in the sea for food, they also become the part of the system। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इस सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन करती हूँ, आप समझो। जैसे एक फिश है, अब फिश को ईट कर रही है वेल, और फिश को ह्यूमंस भी अब फिश को क्या कर रही है, ह्यूमन भी इनटेक कर रही है, ह्यूमन भी ले रही। तो ये क्या एक सिस्टम बना ना, सब ये क्या है, ये फिश पे डिपेंड है, फिश शार्क पे डिपेंड है, ये सारे क्या है, ये एक दूसरे पे डिपेंड है। ये सारे क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। ओशियन में भी बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब हम लोग को पढ़ना है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये लास्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं और इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे NCERT सॉल्यूशन। चलिए, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट पहले ख़त्म कर ले जल्दी।
Humans depend on environment for various resources like air, water, soil, plants, animals, minerals, metals and energy. Means कि जो humans जो होते हैं वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं, जब बहुत सारे रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, मिनरल्स, मेटल्स, एनर्जी। ये क्या है, हमारे जो हम लोग क्या है, इन सारे चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। मैं यहाँ पे सर्किल कर दी हूँ। ह्यूमन चेंज देयर इन्वायरमेंट टू सेटिस्फाई देयर एवर ग्रोइंग नीड्स। ह्यूमन क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को अपने ज़रूरतों के हिसाब से चेंज करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट है, ये पर्टिकुलर एरिया इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। अब ये क्या कर रहे हैं, इस फॉरेस्ट को काट के यहाँ पे कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं फैक्ट्री। ये क्या यहाँ पे बना दे रहे हैं, फैक्ट्री बना दे रहे हैं। तो व्हाट दे डू, ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, ये नेचुरल इन्वायरमेंट था, अब ये नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज कर दिए ह्यूमन इन्वायरमेंट में। ये अपने ही हिसाब से, अपने ज़रूरतों के हिसाब से नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। ऐसे ही नहीं कर देंगे वो इन्वायरमेंट को चेंज। उनके पास अगर ज़रूरत है, हाँ मुझे ज़रूरत दिख रही है, मुझे चाहिए ये नेचुरल इन्वायरमेंट का, मुझे चाहिए, तो उसे वो अपना चेंज करेंगे इन्वायरमेंट को। A perfect balance is necessary between the natural and human environment. परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट में। मतलब कि ह्यूमन इन्वायरमेंट को, नेचर को ज़्यादा ये चेंज नहीं करना चाहिए। तो परफेक्ट बैलेंस होगा तभी सारा चीज़ सही होगा। परफेक्ट बैलेंस भी नेसेसरी है नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में। Environment is changing because of our increasing needs, due to which we are modifying and sometimes even destroying our natural surroundings. देखिए इन्वायरमेंट चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे डिमांड्स, हमारे ज़रूरतें बढ़ रहे हैं। ज़रूरत कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पहले बताइए क्या हो रहा है। पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगा तो उनके डिमांड्स भी इंक्रीज होंगे। मुझे घर चाहिए, वो कहेंगे मुझे घर चाहिए, तो पॉपुलेशन इंक्रीजेस हुई तो उनके डिमांड्स भी इंक्रीजेस होंगे। ठीक है, क्लियर ऑफ यू। तो वो कभी कभी वो नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं, कभी कभी तो नेचुरल सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हमारा लास्ट जो है, ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन अ हार्मोनियस वेज। ह्यूमन को मस्ट ये सीखना चाहिए कि हम लोग कैसे अच्छे से इन्वायरमेंट में कैसे रहें, हार्मोनियस वे। हम अच्छे तरीके से हार्मोनियस वे में अच्छे तरीके से, किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को यूज़ करें, ना ही इन्वायरमेंट को भी नुकसान होगी, ना ही हमें भी नुकसान होगी, किसी को नुकसान नहीं होगी। तो फाइनली दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। चैप्टर बहुत छोटा है, देख सकते हैं चैप्टर बहुत छोटा है। मैं सबको आपको आराम से रोक के दिखलाई हूँ, देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं सबको आराम से रोक के लिखवाई। अब मुझे मत कहिएगा कि मैंने नहीं रोका। ये सारे हैं आपके नोट्स। व्हाट इज इट, इट इज योर नोट्स। नोट्स एंड लिख लेना ऑल ऑफ यू। थैंक यू so much for attending my class and watch this video till end and don't skip this video. So bye friends, take care, goodbye, we will meet on the next video. The next video is NCERT solution of this chapter.